Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid, and in this video we are going to discuss about the cholinergic agonist, and we are going to start this chapter. You know very well about it that we have two types of receptors present in our body which are dealing with the autonomic nervous system. So the first receptor is the adrenergic receptor, on which adrenaline or noradrenaline is going to bind. Now we are going to start the second type of receptor, which are cholinergic receptors. So these are the receptors which are present in body, and your acetylcholine, which is a neurotransmitter, it is going to bind with these types of receptors. Okay. Now let's we discuss about the cholinergic drugs. Okay. So cholinergic drugs are the drugs which bind to these receptors. For example, if I consider this is any membrane of any type of organ or effector organ, so these are the cholinergic receptors which are present on its membrane. Now, if we give the cholinergic drugs, so these drugs are going to bind with these types of receptor and initiate the particular response inside the cell. Okay, so there are two types of cholinergic drugs. Okay, let's discuss about the cholinergic drugs. So as we have discussed these drugs in the adrenergic agonist chapter, so cholinergic drugs, I will represent these cholinergic drugs with CD, cholinergic and drugs. Okay, these are of two types of drugs. First drug is, so the first type of cholinergic receptors are parasympatho mimetics में IMETICS. ठीक है. First is this type of drug, and the second type of drug is parasympatho, आगे lytics. ये दो ड्रग्स आ जाती है हमारे इसके अंदर. सो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द ड्रग्स which are activating these receptors. Whenever they bind with cholinergic receptor, they activate a response. And the second type of drug, which are parasympatholytics, as the word lytics indicate, they are going to break down. It means they are deactivating these cholinergic receptors. Okay, so we have discussed about these types of drugs. Now let's discuss about the cholinergic neurons and where these neurons are present. Because you know very well that acetylcholine are going to bind with, are going to release with these types of neurons. So you know very well we have a pre-sympathetic nerve and we have a postsynaptic nerve. So as we have discussed earlier in the preparation or in the production of epinephrine or norepinephrine. Now let's discuss about the neurons which are present in the autonomic nervous system. So in the autonomic nervous system, ANS. Okay, so in autonomic nervous system we have three types of neurons or three type of system. You know very well that in the parasympathetic nervous system, first is the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ओके अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है. फॉर एग्जांपल ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आ रही है. ठीक है, इस तरह से ये इसकी नर्व एंडिंग हो गई. नेक्स्ट आगे इस नर्व एंडिंग से इसने एसिटाइलिनकोलिन को रिलीज़ करना है. किस तरह से रिलीज़ होगा वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. अब आगे इसके आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगी. ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर उसका रिसेप्टर है. आगे ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. इस न्यूरॉन की इस तरह से एंडिंग हो रही है. इस न्यूरॉन के आगे इसका इफेक्टर सेल आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टर सेल की बॉडी आ जाएगी. ये फॉर एग्जांपल इफेक्टर सेल है और इफेक्टर सेल के ऊपर एक और छोटा सा रिसेप्टर होता है. यहाँ से भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. ठीक है, ओके. अब अगर हम इसी तरह ही पैरासिम्पैथेटिक में बात करें, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह है. न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एंडिंग है. यहाँ से जो है एसिटाइलिनकोलिन रिलीज हो रहा है. फिर आगे हमारे पास एक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आप इसे कह सकते हैं, वो रिलीज हो रहा है. और आगे हमारे पास इफेक्टर सेल आ जाता है जिसके ऊपर रिसेप्टर है. यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये दोनों एसिटाइलिनकोलिन को रिलीज करेंगे. यहाँ से एसिटाइलिनकोलिन रिलीज हो रहा है.
यानी हमेशा चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों की जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व हम कह देते हैं, वो एसिटाइलिन कोलिन को ही रिलीज़ करेंगे। बट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि अगर हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये वाली जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये हमारे पास आगे नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर रहा है, जबकि हम इधर जब आके बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एसिटाइलिन कोलिन को ही दोबारा रिलीज़ करता है। ठीक है, सो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। अगर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से भी एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज़ करता है तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की एक न्यूरॉन है, ठीक है। और अगर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर रहा है तो वो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम, ये तो था ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात, अगर हम सिस्टमेटिक वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो उसमें भी यही चीज़ आ जाती है। उसमें भी एसिटाइलिन कोलिन का ही रोल होता है। ये मैं बता रही हूँ कि किस किस न्यूरॉन से एसिटाइलिन कोलिन रिलीज़ हो रहा है। अब जो जो न्यूरॉन एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज़ कर रहा है, उस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का नाम देंगे। अब हमारे पास सेकंड आ गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को मैं एनएस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसकी भी यही है कि नर्व आपके पास निकलेगी, ये नर्व की एंडिंग है और आगे हमारे पास डायरेक्ट ही इफेक्टर सेल आ जाता है, ठीक है। ये इफेक्टर सेल का रिसेप्टर हो गया और जिसने एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज़ किया, ये क्या है? एसिटाइलिन कोलिन। और यहाँ पर जो इफेक्टर सेल होगा वो हमारे पास स्केलेटल मसल है हमारे। आपको पता है ना कि जो हमारे पास ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर यही इफ़ेक्ट करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का तो काम है कि जो रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिक हो रहे हैं उनको डील करना, बल्कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके स्केलेटल मसल्स, आपकी जो स्केलेटल मूवमेंट्स होती हैं उनको हेल्प करता है और उनको हेल्प करने के लिए भी एसिटाइलिन कोलिन रिलीज़ होता है। सो अब आप लोगों को क्या पता लगा? आपको पता लगा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, उनमें जहाँ जहाँ पर एसिटाइलिन कोलिन रिलीज़ हो रहा है वो हमारे वो नर्व्स क्या हैं? वो नर्व्स कोलिनर्जिक नर्व्स हैं। कोलिनर्जिक नर्व्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ से एसिटाइलिन कोलिन रिलीज़ हो रहा है या एसिटाइलिन कोलिन बाइंड अप हो रहा है। सो अब आप ये देख रहे हैं, ये जो रिसेप्टर है जो एसिटाइलिन कोलिन के साथ बाइंड करेगा और स्केलेटल मसल में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, इस रिसेप्टर को भी हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहेंगे क्योंकि एसिटाइलिन कोलिन इसके ऊपर बाइंड अप कर रहा है। ठीक है, सो ये शॉर्ट सा नोट था कि हम लोग के पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या हैं और कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे ये न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेज़ेंट हैं। अब बात ये आ जाती है कि ये एसिटाइलिन कोलिन रिलीज़ कैसे होता है? ये तो हमें पता लग गया कि ठीक है, आगे एक रिसेप्टर होता है, उसके साथ एसिटाइलिन कोलिन बाइंड करता है, लेकिन एक पीस साइनेप्टिक नर्व किस तरह से एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज़ करती है? सो एक्चुअली इस पूरे 6 स्टेप्स है एसिटाइलिन को रिलीज़ करने के। तो अब वन बाय वन हम उन सारे स्टेप्स को डील अप करेंगे और उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बना देती हूँ, ठीक है? ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। आपको याद है मैंने पिछली डायग्राम में इस तरह का लेबल बनाया था, ठीक है? यही वही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन अब मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है? वहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैंने ऐसे बना दिया था, बट अब वो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब मैं इसकी सारी सिंथेसिस आपको बताऊँगी कि एसिटाइलिन कोलिन हमारे पास बन किस तरह से रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक को ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है? और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन किस तरह से बन रहा है वो हमने सारा समझाया था। हम साथ-साथ उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है? सो मैं एक और डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ जो कि होगी, बल्कि मैं उसको थोड़ा-सा इधर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों डायग्राम्स में एक साथ सिखा सकूँ। आपको एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनर्जिक यानी न्यूरॉन का भी पता होगा और कोलिनर्जिक न्यूरॉन का भी साथ ही आपको पता होगा। सो ये दोनों मैंने न्यूरॉन्स बना दिए हैं, अब हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये को ट्रांसपोर्टर है, उस तरफ भी एक और ट्रांसपोर्टर था। इस को ट्रांसपोर्टर का यहाँ पर ये है कोलिनर्जिक नर्व और ये है एड्रेनर्जिक नर्व। सो ये यहाँ से क्या रिलीज़ करेगी, एसिटाइलिन कोलिन यहाँ से रिलीज़ होगा और यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा या एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, ठीक है। सो अब किस तरह से इसकी सिंथेसिस होनी है, इधर क्या चीज़ ऐसे होनी है कि ये बना, हमने ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले ये को ट्रांसपोर्टर है, इसको हम सोडियम को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। इसने क्या करना है कि कोलिन को अंदर लेके आना है। यहाँ से कोलिन अंदर जाता है, CHOLINE, ठीक है।
ये कोलिन अंदर की तरफ जाता है, साथ ही सोडियम भी इसके अंदर ही इसी को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से अंदर जाता है। जबकि उधर हमने डिस्कस किया था कि टायरोसिन अंदर जा रहा था, टायरोसिन को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, और साथ सोडियम भी अंदर जा रहा था इसी को ट्रांसपोर्टर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया था कि हम लोगों ने देखा था कि अब एंजाइम्स इसके साथ ज़ाहिर बात है एक्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं कोलिन के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि कोलिन एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, ठीक है? एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ईसीएफ है ना, बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोलिन अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम है, कैरियर ट्रांसपोर्टर है, जिसको को ट्रांसपोर्ट सोडियम भी कहते हैं, वो इसको अंदर लेके जा रहा है। अच्छा, कोलिन के बारे में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये क्वार्टरनी नाइट्रोजन है और इसके ऊपर एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ पर इसको परमानेंट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसने अंदर की तरफ जाना है, तो ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में बाहर ऑलरेडी ही, अगर आप मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को याद रखें, तो बाहर हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बाहर के बड़े पॉजिटिव चार्ज ने अंदर आना है तो वो कैसे आ सकेगा ना, उन मेम्ब्रेन उसे नहीं आने देगी। तो यही वजह है कि हमें कोलिन को अंदर लेके जाने के लिए एक को ट्रांसपोर्टर, सोडियम डिपेंडेंट या एनर्जी डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, ताकि वो इसको अंदर लेके जा सके। देखिए, कोलिन अगर अंदर नहीं जाएगा तो हमारे पास एसिटाइलिन कोलिन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने कोलिन को अंदर लेके जाना है और ये एक परमानेंट चार्ज है, इस वजह से ये अंदर जाएगा। अब जैसे ही अंदर जाएगा ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप आ जाता है, ठीक है। क्यों रेट लिमिटिंग स्टेप है? रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये स्टेप ना हुआ तो आपकी एसिटाइलिन कोलिन की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। इसलिए ये स्टेप इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एसिटाइलिन कोलिन को रेगुलेट कर रहा है या प्रोड्यूस करवा रहा है। अब ये जैसे ही अंदर जाएगा तो इसके ऊपर एंजाइम एक ऐड करेगा जिसे कहते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये कोलिन सी अंदर आ गया, इसके ऊपर एक एंजाइम ऐड करेगा एसिटाइलिन कोलिन, मैं एसिटाइलिन कोलिन ट्रांसफरेज इस तरह से लिख रही हूँ, वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसके अंदर जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप देखिए, कोलिन तो वो पहले था, एसिटाइलिन कोलिन के मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, एसिटाइल कोलिन। सब इस एसिटाइलिन कोलिन दो पार्ट्स पे है, ठीक है। एक तो है कोलिन, वो कोलिन हमने अंदर ले आए हैं। अब उसके अंदर हमने ये एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, तो वो ग्रुप ऐड कर रहा है एसिटाइलिन कोलिन ट्रांसफरेज। उसने जब ऐड कर दिया तो हमारे पास ये पार्ट जो है वो बन जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने इसको स्टोर करना है एक वेसिकल के अंदर, ठीक है। अब इसको एक वेसिकल में हम पैक करेंगे। ये एक वेसिकल था, ये इस वेसिकल के अंदर ये एसिटाइलिन कोलिन, ये डॉट से मैंने बता दिया है कि ये अंदर चला गया है, ठीक है। लेकिन और ये अंदर किस तरह से जाएगा, पैक किस तरह से होगा? ये खुद ब खुद पैक नहीं होगा, इसके लिए भी यहाँ पर एक कोई को ट्रांसपोर्टर होता है जो इस एसिटाइलिन कोलिन को इस वेसिकल के अंदर डालेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एटीपी की भी ज़रूरत होती है, एटीपी के ज़रिए से ही ये अंदर एंटर होगा। और सिर्फ एसिटाइलिन कोलिन एंटर नहीं होगा, साथ इसके साथ हमें टोटल तीन चीज़ें इस वेसिकल के अंदर होंगी, ठीक है। मैं इस वेसिकल को अगर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, ये वो वेसिकल है। एसिटाइलिन कोलिन तो ठीक है भाई, बाहर से एक सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर था जिसने एटीपी को यूज़ किया और एटीपी के यूज़ के साथ इसको वो अंदर लेके आ गया, ये अंदर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो और चीज़ें इसके साथ ऐड होंगी। एक हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन होगा, ये प्रोटियोग्लाइकेन था, और दूसरा हमारे पास एटीपी को ट्रांसपोर्टर होगा, ठीक है। एटीपी ये अभी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटियोग्लाइकन भी है, एटीपी भी साथ है, और एसिटाइलिन कोलिन, ये जो एटीपी हमने बाहर से अंदर भेजा था वो एटीपी, प्रोटियोग्लाइकन और साथ एसिटाइलिन कोलिन, ये तीन चीज़ें इस वेसिकल के अंदर पैक होंगी। सो पहली चीज़ थी सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलिन कोलिन। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास कि उसका ट्रांसपोर्ट करना है एक वेसिकल के अंदर, वो भी हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, ये दो स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि हमने उसको रिलीज़ करवाना है। ये वेसिकल तो बन गया जिसके अंदर तीन चीज़ें आ गई हैं। अब इस वेसिकल ने इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ करना है, इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ करना है ताकि एसिटाइलिन कोलिन बाहर निकले। तो वो किस तरह से डिफ्यूज़ करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेसिकल इस तरह से इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा।
और फिर ये जो एसिटाइलकोलिन है ये सेमिक लिफ्ट जो साइनेप्टिक लिफ्ट होता है उसके ज़रिए से ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर कुछ प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से बना देती हूँ। ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है कोई भी इफेक्टर सेल की मेम्ब्रेन आ जाती है, लेट्स सपोज कोई चीज़ तरह की मेम्ब्रेन है। अब एसिटाइलकोलिन ने इसके साथ जाके अपना बाइंड कर देना और पार्टिकुलर रिस्पॉन्स जो भी करना होगा वो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेसिस, ठीक है। ये क्या करता है, इस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। ये एसिटाइलकोलिन इसके पास गया, ये एसिटाइलकोलिन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। वो कौन-कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक तो वो कोलीन अलग कर देगा, सी फॉर कोलीन मैंने लिखा है, और ए फॉर एसीटेट। ये इन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक एसिटाइल कोलीन को तोड़ देता है। देन अगेन आपका ये जो एसिटाइल कोलीन है ये रीअपटेक हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और अगेन ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो ये था शॉर्ट में, मैंने आप सब लोगों को ये चीज़ बता दी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है कि कुछ ड्रग्स जो इसको स्टॉप करने में मदद देंगी। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आ गया हमारे पास और हम चाहते हैं कि उसकी इस नर्व से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ ना हो। अब ना होने की वजह से हम इसकी प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स में से ही हम उसको डिग्रेड करेंगे। यानी हम यहाँ पर जो इसका को ट्रांसपोर्टर है, फॉर एग्जांपल सबसे पहली ड्रग जो यहाँ पर इस पे इफ़ेक्ट करती है, इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है इस को ट्रांसपोर्टर के ऊपर, और वो ड्रग कौन सी है, वो है हेमिकोलेनियम, ठीक है। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, आप सुन लें स्पेलिंग क्योंकि स्पेस कम है। तो हेमिकोलियम की स्पेलिंग है HEMICHOLINIUM, ठीक है। हेमिकोलिनियम इस स्टेप को रिगार्ड करेगी, इस को ट्रांसपोर्टर को कहेगी कि तुम कोलिन को अंदर ना लेके जाओ। अब आपको पता है कि कोलिन जब अंदर नहीं आएगा तो ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे और एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। पहली ड्रग ये थी। देन सेकंड ड्रग हमारे पास आती है वेसिमाकोल, और वो यहाँ इस को ट्रांसपोर्टर जिसने इसको वेसिकल में पैक करना था उसको डिग्रेड करेगी, उसको स्टॉप करेगी। वैसी मकोल की स्पेलिंग आप देख लें, VESAMICOL, ठीक है। इसने इसको रोक दिया। अब जाहिर बात है आपको पता है कि अगर एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर पैक ना हुआ तो वो रिलीज नहीं हो सकेगा। सो ये कुछ स्टेप्स आ जाते हैं इसको रिलीज से रोकने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन बोल्यूटिनियम, ठीक है। टॉक्सिन बोल्यूटिनियम इसकी रिलीज को, इसका जो डिफिजन होनी है मेम्ब्रेन के साथ उसको ये डिग्रेड करता है और उसको रिलीज नहीं होने देता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि ये रिलीज को कंट्रोल क्या है, मतलब ऐसे नहीं है कि अचानक ये वेसिकल आके इसके साथ बाइंड होगा और रिलीज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम का अपटेक होता है, कैल्शियम हमारे पास अंदर आता है और यानी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में पोलैरिटी आ जाती है और ये वेसिकल मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने बता दी, और इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। और डिग्रेड भी यही चीज़ हो रही है कि एसिटाइलकोलिन भी स्ट्रेसेस जो है जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर वो डिग्रेड नहीं करेगा तो वापसी कोलिन हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, अगर हम एपिनेफ्रीन वाले को दोबारा से रिवाइज कर लें तो हमने कहा था कि टायरोसिन जैसे ही अंदर आएगा अब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या एक्ट कर रहा था, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट कर रहा था। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या कर रहा था, हाइड्रोक्सिल अज़ाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। यानी ये टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन है, इस टायरोसिन के अंदर हमने OH ग्रुप ऐड कर दिया। अगर जब हम ऐड कर देंगे टायरोसिन के अंदर OH ग्रुप को तो वो बन जाएगा डोपा, DOPA। डोपा क्या था, डाई मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल एनाली, ठीक है। अब ये बन गया है। अब डोपा ने क्या करना है, इस डोपा ने इसमें डी कार्बोक्सिलाइज इसके ऊपर इंजाइम ऐड करेगा, डी कार्बोक्साइलेज, ठीक है। उसकी वजह से ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डोपामीन ने वेसिकल के अंदर पैक होना है, इसके ऊपर कौन ट्रांसपोर्टर होगा, डोपामीन अंदर जाएगा। अब वेसिकल के अंदर डोपामीन के ऊपर एक एंजाइम ऐड करेगा जिसे हम कहते हैं डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। उसने उस डोपामीन को हमारे पास कन्वर्ट कर देना है एपिनेफ्रीन या नोरेपिनेफ्रीन में, और फिर जैसे ही कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से ये वेसिकल
यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये वेजिकल इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वेजिकल बाइंड कर गया, एपिनेफ्रीन ये हमारे पास बन गया, ठीक है। आगे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये रिसेप्टर इसका इस तरह से प्रेजेंट होगा, उस रिसेप्टर ने इस एपिनेफ्रीन को एक्सेप्ट करना है और पार्टिकुलर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर इसको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम भी हमारे पास प्रेजेंट था जिसको हम कहते थे कोमेट, COMT। कोमेट क्या होता है हमारे पास, कैटिकोल हाइड्रो ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये इसको डिग्रेड कर देता है, इसको तोड़ देता है इसके अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और फिर वापसी आपको पता है कि टायरोसिन की री अपटेक हो जाती है। और कुछ प्री साइनेप्टिक यहाँ पर वो भी प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, जो कि कुछ एपिनेफ्रीन को अपने साथ बाइंड कर देते हैं और इसकी जो डिफियन है या इसका जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना है उस प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है। अब हमने कल भी जिस तरह इधर हमने ड्रग्स पढ़ी हैं कि कुछ कुछ ड्रग्स यहाँ यहाँ पॉइंट पे इसको डिग्रेड कर रही हैं, इसी तरह टायरोसिन के भी कुछ ड्रग्स हैं जो इसको डिग्रेड कर रही हैं कुछ प्रोसेस से। क्यों क्यों हमने डिग्रेड करना है, डिग्रेड हमने इसलिए करना है क्योंकि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम इसको इस स्टेप पे डिग्रेड करें। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आ जाता है वो है कि ये टायरोसिन की ये कोमेट जब इसके ऊपर एक्ट करेगा वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और जो टायरोसिन है अब उसकी जो दोबारा रीअपटेक है उसको नेगेटिव, उसको जो इफ़ेक्ट करता है उसके अपोजिट जो जाता है वो हमारे पास एक ड्रग है रेस्प्रीन। रेस्प्रीन में यहाँ पर इसकी स्पेलिंग लिख रही हूँ RESPERINE, ठीक है। ये ड्रग है जो कि इसकी री अपटेक को रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग आ जाती है जो कि इसकी डिफियन जो यहाँ पर ये जो साइनेप्टिक वेजिकल जो मिल रहा है उसको नेगेटिव इफेक्ट देती है, और वो कौन सी ड्रग है हमारे पास, गुआनाथीन, GUANTHINE, ठीक है। गुआनाथीन वो इसको ब्लॉक करेगी। और सेकंड आई थिंक हमारे पास आ जाती है कि जो इसको, आई एम सॉरी मैंने कहा कि इसकी री अपटेक को वो रेस्प्रीन नहीं रोकता है, रेस्प्रीन इसके यहाँ पर जो को ट्रांसपोर्टर होगा जो इसको वेजिकल के अंदर डालता है उसको रोकता है। और जो इसकी री अपटेक को रोकती हैं ड्रग्स उनका नाम है कोकेन, COCAINE, कोकेन। और दूसरी ड्रग है हमारे पास इम्पी पैरामाइन, MINE होता है, ठीक है। और एक और ड्रग हमारे बुक में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, SNRIS, ठीक है। ये तीन ड्रग्स हैं जो कि इसकी री अपटेक को रोकती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की भी प्रोडक्शन समझ में आ गई है और एसिटाइलकोलिन की भी प्रोडक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हमने कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और उसकी सिंथेसिस के बारे में बात की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे डिटेल देखेंगे कि कितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।